حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ جی جی، بی بی شہر بانو، جی جی. وہ کن کی فتوحات میں آئی، کس کے زمانے میں آئی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میں اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غلط تھی تو پھر فتوحات تو نہ ہوئی نا، وہ دیکھیں فتوحات نہیں ہوئی، جو مال آیا وہ تو سارا پھر حرام ہو جائے گا. جی جی جی، آپ جواب سننا چاہیں گے اس کا؟ جی جی آپ دے دیں. جی جی، میں تو اپنے طور پہ جواب دوں گا نا، ضروری تو نہیں ہے کہ جو جواب آپ چاہتے ہیں وہی میں دوں. اپنے طور پہ جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا کام کفار سے لے لیتا ہے، مشرکین سے لے لیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، طلباء بھی پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہو گیا؟ اچھا، اللہ نے ایک کام جو ہے کفار اور مشرکین سے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بگ ڈیل تھوڑی ہے. آپ کا جواب پورا ہو گیا؟ جی جی، بسم اللہ. ٹھیک ہے، چلے میسم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اتنا تو تسلیم کیا کہ جی شہر بانو حضرت عمر کی دور خلافت میں فتوحات کے ذریعے آئی تھی، اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی کے مشورے سے حضرت حسین سے ہوا، ان سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اتنا تو آپ نے تسلیم کیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی جو ہے وہ معاذ اللہ غلط بندے سے نیک کام لے لیتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. جی جی، میں صرف میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب حضرت عمر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ مذہب کے بقول وہ غاصب تھے، ان کی خلافت صحیح نہیں تھی، تو پھر جہاد تو ہوا نہیں نا، وہ تو جہاد ہی نہیں ہوا. جی وہ نیک کام کیسے ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہو نا نیک کام ہے، فتوحات ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، ڈمکا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو مال آیا وہ بھی غلط ہوگا نا پھر شیعہ مذہب کے مطابق. ہمارے نزدیک تو سب صحیح ہے شیعہ مذہب کے مطابق. تو ہمارے نزدیک بھی سب صحیح ہے. ابھی تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت جو آپ دن رات پیش کرتے ہو وہی بتائیے نا کہ بھائی کام صحیح تھا، غلط آدمی سے ہو گیا، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آئمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی بھی دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اتنا بھی آپ نے تسلیم کیا ہے ماشاءاللہ. نہیں میں نے آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں لطیف صاحب، آپ ایسا نہ کریں. ایک بات ہے نا، جی جی نہیں، لیکن ثقیفہ سے آنورڈ آپ ڈسٹنکشن نہیں کرتے. پہلے تو اصل مسئلہ پہ آئے نا، اصل مسئلہ پر آئے نا. اصل مسئلہ یہ نا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کوآپریشن کیا، معمولی کوآپریشن کیا، ہر وقت مشورے میں شریک رہتے تھے. ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں جی میں وہ سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں مدینے سے باہر، حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے جاتے ہیں. حضرت ابوبکر وہ کرتے ہیں، ان کے سے لڑنے کے لیے جانے کے لیے خود کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آپ یہیں رہیں، باقی ہم لوگ ہیں دیکھنے والے، اسود انسی اور اس کو مجھے مسلمہ کذاب وغیرہ سجا وغیرہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، غزوے میں شرکت کرتے ہیں. ان کو روک دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ قتل ہو گئے تو مسلمان حکومت کا، ملت کا ایک سربراہ جو ہے وہ قتل ہو جائے گا اور امت بکھر جائے گی. یہ اس موقع پر تاریخ میں الفاظ امام علی علیہ السلام کے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے، جتنا وہ ہوا ہے، اس میں سب میں حضرت علی علیہ السلام شریک ہے. چاہے وہ اسے کیا کہتے ہیں شراب کی سزا کو بڑھانے کا معاملہ ہو، چاہے مؤلفۃ القلوب کا واقعہ ہو، جو کوئی بھی وہ لے لیں، اس میں حضرت علی علیہ السلام شریک رہے. تو بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ حضرت نے اتنا وہ کیا، جو جنگیں ہوئیں ان میں حضرت عمر کے آدھے دور کے بعد کی جو جنگیں ہیں اور حضرت عثمان کے دور کی، حسن علیہ السلام اس میں شریک ہوئے ہیں. جو مال غنیمت آتا تھا، یہ جو تھیں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ کون تھیں، کس دور میں آئی تھیں؟ حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہوا، وہ قید ہو کے آئیں تو باندیاں میں نہیں جانے تھیں. ان کا یہ کون ہے؟ ان کا کہ یہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہیں. تو ان کا کہ عام اس کو نہیں دی جا سکتی، اہلی تم اس کا فیصلہ تم کرو. انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا ہاں اب یہ ٹھیک ہے. مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا نا. جب حضرت عمر نے دواوین قائم کی اور کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسن کو بلایا، بٹھایا، جھولیوں میں ان کے درہم و دینار بھرنے شروع کیے، وہ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں بیٹے ان کے کہ حسن اور حسین کو آپ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو صحابی رسول ہوں، میں نے ہجرت بھی کی، یہ تو دونوں بچے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو ان کی فضیلت ہے، ان کی ماں کی، اس کے باپ کی، وہ تمہارے باپ کی فضیلت نہیں ہے. ہم ان کے دینے کو نہیں کہتے کہ آپ کہیں کوئی شخص کہے اٹھ کے کہ ان کی نیت پہ ہمیں وہ نہیں، انہوں نے مصلحتاً کہا تھا. ان کا قبول کرنا تو حجت ہے یا نہیں ہے؟ شیعوں کے لیے، اہل تشیع کے لیے ان کا قبول کرنا جو ہے وہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ یا مال غنیمت کا جو آتا تھا اس میں جو حصہ لیا کرتے تھے سب کو ملتا تھا؟ نہیں ملتا تھا. تو ان کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ نے جو بات کی نا کہ اللہ رب العزت کسی بندے سے کام لے لیتے ہیں، سورہ
नूर के अंदर आप एक आयत खोल लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसका थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ लीजिए, जी ठीक है। उसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। यहाँ मिनकुम पे के लफ्ज पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए जाकर जी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो आयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई, तो अल्लाह फरमाते हैं वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने वादा किया उन मोमिनीन से जो नबी के ज़माने में मौजूद थे। क्या वादा किया कि अल्लाह उनको खलीफा बनाए, ठीक है। अल्लाह का ये वादा, हम कहते हैं अल्लाह अपने वायदे में जो है मुखालफत नहीं करते अपने वायदे की, अल्लाह अपने वायदे में भी सच्चे, बात में भी सच्चे। तो अल्लाह ने ये वायदा पूरा फरमाया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिनको खिलाफतें मिली हैं वो इस कुरान की आयत की रूह से मोमिन हैं, वो इस कुरान की आयत की रूह से मोमिन हैं, पक्के ठक्के मोमिन हैं। जी जी, वो तो आप भी हैं माशाल्लाह, तला भाई भी हैं और ये हाफिज साहब भी हैं। ठीक है। मुझे ये इस वक्त स्ट्रीम में 4 लोग हैं, एक को छोड़ के तीनों पक्के ठक्के मोमिन हैं। आगे बोलो। अल्लाह आपको भी पक्का पक्का नहीं, मोमिन में रहे। आमीन आमीन। अच्छा, आखिरी बात इस हवाले से मुझे जो पूछनी थी जी, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर की बैत की? आप बताएं ना सर, आलिम आप हैं। शिया मजहब के हवाले से, जो शिया मजहब तो आपने पढ़ा हुआ होगा ना। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितना पढ़ा है, आप जितना इल्म तो नहीं है, और माशाल्लाह तलहा भाई और हाफिज साहब जितना तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बहरहाल हमारे पास देखें 2 बातें इसकी हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। हमारा कभी भी ये दावा नहीं है कि हर किताब का हर लफ्ज, जिस तरह आप लोगों का दावा है ना कि सही बुखारी का हर लफ्ज, हर जेर जबर सही है, वो ये और बात है कि बाद में आप लोग कहते हैं वो जुरारा है, फलाना है, डमका है, वो एक अलग बात है। आप ताबीन कर लेते हैं, कयास कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। दोनों दावे आपके होते हैं। एक तो ये भी दावा होता है कि सही उल सही है कुरान के बाद, और दूसरा दावा आपका ये भी होता है कि ये जुरारा का फहम है, यूं है, वो है। कोई बात नहीं है, आप लोग तो मुसलमान लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम काफिरों का ये है मसला कि हमारे पास अगर 10 रिवायात मिलती हैं कि बैत की है तक़ीयतन, और 1000 रिवायात मिलती हैं कि नहीं की हैं। आप माशाल्लाह अपने इल्म के लिहाज से आप वो 10 रिवायतें उठा के यहाँ पे स्ट्रीम पे बैठ के हमें बोल रहे हो तो कि ये देखो की है, ये देखो की है। ठीक है भाई, की है, ओके, और आगे बोले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक हाफिज साहब, एक मिनट, नहीं, कोई बात नहीं। चले मुफ्ती साहब, मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। ठीक, देखें मेसम भाई, नाराज होने वाली बात नहीं है। मैं तो नाराज आपने नहीं कहा हूं ना, जी जी, आपने कहा ना कि अगर 10 रिवायतें आप उठाकर दिखा रहे हैं तो हमारे यहाँ 100 रिवायतें ऐसी होंगी जिसमें होगा कि जी नहीं की है, होंगी नहीं है। हाँ, आप बकौल आपके ना, और आपकी पढ़ी हुई भी है वो, मेरे इल्म में नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ी हुई भी है, मेरे इल्म में और नहीं, उन्हीं वल्लाह मेरे इल्म में नहीं है, वल्लाह मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, इस पे मुझे एक और सवाल याद आ गया लतीफ भाई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी वैसे मेसम भाई, मेरी बात मुकम्मल, मैं पूछूं? अगर आप चाहें तो मैं कर लूं मुकम्मल। आप मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मैं पूछ सकता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह, आप कर लें मुकम्मल। देखिए मेसम भाई, आपने जो बात की ना कि 10 आप उठा के दिखाएंगे तो 100 हमारे पास है, इस तरह की जो भी तादाद आपने बताई कि ना करने की रिवायतें हैं जी, तो मेरे इल्म में नहीं है। आपने बात की है, और मुझे उम्मीद है कि अगर इंशाल्लाह अगर आप दोबारा नेक्स्ट टाइम आए तो वो कोई एक रिवायत आप ले आइएगा, ठीक है, आप अपने उसूलों के मुताबिक वो मुझे दिखा दीजिएगा कि जिसमें हज़रत अली ने बैत ना की हो, ठीक है, एक बात। बाकी दूसरी बात, जहाँ तक आपने की ना कि जी सही रिवायतें हैं या ज़ईफ़ हैं, तो मैंने जो रिवायतें अब तक आपको दिखाई थी वो मैंने दिखाया भी था कि वो सही है, सही है। और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि सही रिवायतें मौजूद हैं, ठीक है मेसम भाई, सही रिवायतें मौजूद हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर की बैत की, ठीक है, ये रिवायतें मौजूद हैं जी। तो इस हवाले से देखें, जिद बहस वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं, जन्नत का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत को करना है। अल्लाह तमाम पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नत में ले जाए, आपको भी जन्नत में ले जाए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है यार, हम तो सिर्फ इस्लाह के लिए बैठे हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं मैं गलत हूँ तो आप आए, मेरी इस्लाह करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ दलील की बुनियाद पर तो कम से कम उसको आप माने, बाकी अल्लाह आपको उस पर गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। जी, आप कहें। जी जी, मेरा सवाल तो दूसरा था, वो मौजू से हट के था, लेकिन चूंकि आपने ये बात कह दी है तो बस इसमें यही है कि अगर दिखा दूं तो आप मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तो नहीं बैठे हैं ना यहाँ पे। जो रियलिटी है भाई, आप तस्लीम करने तो नहीं, आपका दावा तो है कि आओ हमारी इस्लाह करो, ये वो। देखें, आपके यहाँ तो ये उसूल पाया जाता है ना, अगर आपकी एक सही हदीस मिलती है और कहीं और ये सही हदीस को ज़ईफ़ कहा जाता है और वो आपके फेवर में नहीं जाती है, तो आप कहते हो ये देखो, ये जो इस किताब में सही लिखी है, ये दूसरी किताब में इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और दूसरी बात ये है कि ज़ईफ़ हदीस झूठी होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पता है, मुझे को बताने की जरूरत नहीं, मुझसे बेहतर पता है आपको, लेकिन आवाम को नहीं पता होता, आम आवाम को नहीं पता होता। मेरा सवाल सिर्फ ये था, जो मौजू से हट के था, कि कुरान मजीद जो आपके पास है, जो आपका दावा है कि भाई ये सच्चा है, शिया तो काफिर है, नहीं मानते फलाना ढिमकाना, वो ठीक है भाई, हम तो हैं ही काफिर ना, हम तो कुछ भी नहीं मानते। तो आपके जो कुरान में अल्लाह ताला हुक्म नाजिल करता है, वो आपके बकौल ता क़यामत रहता है या किसी मखसूस मौके के लिए रहता है? सवाल ये है कि जो मुबाहले की आयत है, उसके अंदर जो आयत है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, वो ता क़यामत के हर झूठे पे है या सिर्फ उस वक्त के नसारे नजरान के लिए भी? क्या मतलब, आप अपने सवाल को एक तो वाज़ेह करें, मैं फिर बात मुकम्मल करता हूँ। सवाल मेरा ये है कि जो कुरान में आयत मजीद नाजिल हुई है नसारे नजरान के मुबाहले के दौरान के लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो कि हिस्सा है उस आयत का, वो जो लानत है झूठों पे, वो ता क़यामत के हर झूठे पे है या सिर्फ उस मकाम पे जो झूठे थे उन पे है? जी ऐसा ही है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, बस ठीक है ना। तो बस मेरी बात सुने थोड़ी सी, जी वैसे भाई थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा। जी, आपने कहा कि अगर मैं रिवायतें ले भी आऊँ तो आप मानेंगे, ठीक है ना, आपने ये बात की।
जी नहीं मानेंगे आप आप लोग मान मैं बात आप नहीं मानेंगे आप कहोगे देखो यहाँ सही कहा है यूं सही कहा है वो सही कहा है आप मानने आप तो नहीं बात बैठे हैं ना आप बात तो समझ लें जी जी समझ गया बात तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी अच्छा अगर बिल फर्ज में यही बात आपके लिए कह दूं कि मैंने दिखाई सही रिवायत है आपने मानी नहीं, हालांकि मैं कह भी चुका हूँ, ठीक है जी एक जी बात। जी जी और फिर दूसरी बात ये कि आवाम सुन रही है मुझे, जी ये हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है, मुझे इससे इनकार नहीं है, आप ले आओ, आप रिवायत ले आओ, जी सही रिवायत हो, फिर हम जो रिवायतें आपको दिखा रहे हैं उनका भी तो जवाब होना चाहिए ना, उनके दरमियान तारुज उसको आप दूर करें, और जो हम दलाइल पेश कर रहे हैं उनका आप जवाब दें। आप पूरे तरीके से हमारे उस मसले को हल कर देंगे, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं मानूंगा उस मसले को। अल्लाह करे कि ये रिकॉर्डिंग इनकार सेव हो थोड़ी जाए है, जब ये हो मुझे जाएगा इनकार थोड़ी है मेरे रसूल भाई, नहीं करोगे मुझे ना इनकार मुझे थोड़ी पता है है मेसम भाई, जज़ाकल्लाह मुझे इनकार अल्लाह नहीं करे कि है, आप करें नहीं है, हाँ आपने ठीक है? मेरे लिए अच्छी आपने सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने तहम्मुल से बात सुनी और तहम्मुल से जवाब दिया और इसके लिए मैं आपका वाकई शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छे से आपने बात की और इसके लिए मैं लाऊंगा ठीक है अगर आप मान लेंगे तो ठीक है नहीं मानेंगे तो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं ना आप भी यहाँ माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हो तो किसी के सर पे गन रख के उसको कन्वर्ट करना तो आपका मकसद नहीं है उसी तरह हमारा भी अगर आपको हम अपने दलाइल दिखा देंगे तो हम आपके सर पे कोई गन रख के आपको कन्वर्ट करना हमारा मकसद तो नहीं है आपने एक बात रखी उसका हम इल्मी और मुदल्लल जवाब दे देंगे अगर आपको मानना है ठीक है नहीं मानना कोई ऐसी बात थोड़ी है ना आवाम के सामने बात आ जाएगी ना, जी आवाम जी के सामने बिल्कुल बात आ भाई जाएगी। जी जी आवाम के सामने बात आएगी कोई तस्लीम कर लेगा कोई नहीं करेगा खैर है कोई बात नहीं